Hello friends, so today we are going to learn about the financial management. So this is a very small topic. Financial management किसे बोलेंगे वो हमें समझना है इस टॉपिक में. Now talking about finances, मैं theoretical part में जाऊँ उससे पहले आपको बताऊँ तो finances is something which is related to what? Money. And we all know that what is the importance of money in case of organization, case of personal life, in case of professional life, everything, right? So finance is something that you will need from day one to day last of the organization. You will need money. Then only you can run the business, you can develop the business, you can acquire the business, and then only you will be able to survive in the market, right? So finance is something which is having so much of importance in an organization, because you will need that, then only you will be able to survive in the market, right? अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है जिसमें मैंने फिनेंस को बताया है लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. दे मे आस्क यू दिस इन द MCQ क्वेश्चन, that is what? It is a lifeblood of business which is needed, otherwise your business won't work. Needed for everything. Everything means establishment, development, expansion, modernization. I want to establish a new business, then also I need money. I want to develop my business, I need money, I need finances. I want to expand my business, I still need finances. I want to modernize it, I want to grow it in a modern way, in the latest way, still I need what? Money, right? So it is needed for everything. Financial management deals with what? It deals with finance function. Now what do we mean by finance function? Finance function किसे बोलेंगे? Acquiring the funds, finance acquire करना, finance को utilize करना माने कि use करना, उसको allocate करना different जगह पे कि भाई यहाँ पे इतना fund जाएगा, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, right? So acquiring, utilizing and allocating the capital, that is nothing but a finance function. They may ask you, even I may ask you in an exam, that what do we mean by finance function? Then acquisition, utilization and allocation of capital, that is nothing but what? Finance function, right? Now functions of financial management that I have written over here. First is what? Estimate the need. पहले need देख लो भाई कितनी need है. If I tell you that I want to grow all over India, मुझे मेरे वीडियो लेक्चर्स ऑल ओवर इंडिया पहुंचाने हैं, आई नीड टू सी व्हाट इज द नीड. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि मुझे कोई नई रेस्टोरेंट ओपन करनी है, आई नीड टू सी कि मुझे पैसों की, फंड की नीड कितनी है. हाउ मच अमाउंट आई ऑलरेडी हैव, हाउ मच अमाउंट आई नीड टू बोरो फ्रॉम समवन, वो सब चीज़ें मुझे देखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एस्टिमेट कि नीड फंड्स की कितनी है, राइट? देन सेकेंड इज फाइनेंशियल प्लान फॉर रिक्वायर्ड ड्यूरेशन. मैं किसी के पास से अगर पैसे ले रही हूँ तो कितने टाइम तक आई विल बी एबल टू रीपे द सेम. मुझे एक फाइनेंशियल प्लान रेडी करना पड़ेगा. ऑन दैट फाइनेंशियल प्लान ओनली आई कैन वर्क, राइट? कि भाई पहले हम ये करेंगे, इस तरीके से रेस्टोरेंट ओपन होगा, ये होगा, वो होगा, वॉट एवर इट इज, एंड बाय दिस पीरियड ऑफ टाइम, बाय दिस टर्म आई विल रीपे द मनी बैक, राइट? देन प्रिपेयर अ बजट. सी प्लानिंग में भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था. अगेन हियर ऑल्सो इट needs what? Proper planning, proper budgeting is required. मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ. ऑर्गेनाइजेशन की बात तो अलग है ही, उसमें तो बजट इज मस्ट. बट आपके घर में किसी का एक मैरिज फंक्शन है. नाउ इन योर मैरिज फंक्शन, इन योर फैमिली मेम्बर्स मैरिज फंक्शन ऑल्सो यू नीड अ प्रॉपर बजट. क्लोथिंग रिक्वायर्स दिस मच मनी, jewelry requires this much money, catering requires this much money, venue requires this much money, whatever your planning is. कि भाई ये इवेंट करना है तो ये इवेंट के लिए हर एक चीज़ का कुछ बजट इज अलोकेटेड कि इसके लिए इतना खर्चा करना है, इसके लिए इतना खर्चा करना है, इसके लिए इतना करना है, एंड सो ऑन, राइट? सो यू नीड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर एवरी इवेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ नया कर रहे हो या आप कोई प्रोजेक्शन कर रहे हो कि हमें ये अचीव करना है, ये सेल अचीव करना है या वॉट एवर अचीव करना है, तो उसके लिए यू नीड टू मेक अ बजट कि भाई
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसमें मटेरियल्स के लिए इतना पैसा खर्च हो सकता है, इसके लिए ये प्रोसेस के लिए इतना पैसा खर्च हो सकता है. ईच एंड एवरी प्रोसेस विल नीड अ प्रॉपर बजट ऑन विच यू नीड टू वर्क अपॉन, राइट. देन अलोकेट द फंड्स. जैसे बजट बनाया उस हिसाब से अलोकेट कर दो फंड्स कि भाई इसको 10 लाख रुपए, इसको 20 लाख, इसको 5 लाख, एज पर द नीड ऑफ द डिपार्टमेंट. जस्ट अलोकेट द फंड्स एंड देन यूटिलाइज द फंड्स. Then the next option is interesting one, capital structure options. Means as I said earlier कि भाई मेरे पास for example मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना है, I am in a need of let's say 80 lakhs rupees. मुझे 80 lakhs चाहिए, पर 80 में से I already have 50 lakhs. This is what my owner's capital. I already have 50 lakhs. Now I need what? 30 lakhs extra. So it is what? My borrowed capital. बाहर से लाई हुई कैपिटल. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स इज वेल, राइट. हमें पता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स. सो देर आर वेज बाय विच आई कैन जनरेट द मनी. सो इट कुड बी इन एनी फॉर्म. सो दिस इज नथिंग बट माई कैपिटल स्ट्रक्चर कि भाई 80 lakhs की रिक्वायरमेंट थी, 50 इज माई ओनर्स फंड, मेरे खुद के पैसे, एंड 30 इज द बोरोड कैपिटल, बोरोड फंड जो मैं बाहर से कहीं से ऑन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट लेके आई हूँ, राइट. सो आई नीड टू डिसाइड फ्रॉम वेयर टू ऑब्टेन द कैपिटल. मुझे कहाँ से कैपिटल लानी है, दैट आई नीड टू डिसाइड. देन कैरी आउट द प्रोसीजर टू एक्वायर द बिजनेस. अगर मुझे कोई ऑन गोइंग बिजनेस अक्वायर करना है, बाय कर लेना है, देन आई नीड टू कैरी आउट दैट प्रोसेस. इफ आई एम अक्वायरिंग द ऑन गोइंग बिजनेस ऑफ समवन, देन आई नीड टू कैरी आउट दैट प्रोसेस एज वेल कि भाई मुझे किस तरीके से कितने फंड्स में ये अक्वायर करना है, अक्वायर करने के बाद इसको रन करने के लिए मुझे कितने फंड्स चाहिए, एंड सो ऑन, राइट. एज पर योर current situation of an organization, you need to allocate the finances, right. Control is needed here, utmost control is needed here कि आपने acquired funds है जो आप कहीं से लेके आए हो, acquire करे हुए funds है, और आपने वो funds को हर एक डिपार्टमेंट में allocate किया है, तो क्या वो allocate करे हुए funds नेसेसरी जो चीज़ थी, क्या उसी में यूटिलाइज हो रहे हैं? क्या मैंने जो अज्यूम करा था, क्या मैंने जो बजट बनाया था, क्या मैंने जो प्लानिंग किया था, क्या मेरे फंड्स उसी अकॉर्डिंग यूटिलाइज हो रहे हैं? इफ़ यूटिलाइज हो रहे हैं, वेल एंड गुड. इफ़ नहीं हो रहे, आई नीड टू डू समथिंग ओवर देयर, राइट. सो कंट्रोल इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज मस्ट, राइट. देन देर इज फ्रेम अ फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रेम तो करनी पड़ेगी ना. क्या करना है फंड्स का? फंड लेके बैठ गए कहीं से, फिर उसको यूटिलाइज करना, वी डोंट नो, दैट वी कैन नॉट डू, राइट. सो we need to frame a financial policy and so on. We need to work upon the same. Then tax planning, I need to do a proper tax planning, no. Being a chartered accountant, definitely I need to do, but all the organizations are in need of doing a proper tax planning. मैं बात कर रही हूँ tax planning की. I am not talking about tax evasion, right? I am talking about tax planning कि मुझे proper planning से आगे बढ़ना है, so that मैं tax भी भरूँ जितना भरना चाहिए, और मेरे फंड्स को भी मैं अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करूँ कि मेरे हाथ में भी कुछ आए, मैं इंटरेस्ट भी पे कर पाऊँ, और मैं रीपे करने के लिए फंड्स इकट्ठा भी कर पाऊँ, राइट. एंड देयर इज़ अरेंजमेंट ऑफ असेट्स. मुझे असेट्स को भी अकॉर्डिंगली अरेंज करना पड़ेगा कि मेरा फिनेंस इंटैक्ट रहे, राइट. सो दिस इज़ नथिंग बट योर फिनेंशियल मैनेजमेंट. दिस इज ऑल अबाउट योर फिनेंशियल मैनेजमेंट, अ वेरी 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 स्मॉल टॉपिक. लेट्स लुक एट द टेक्स्ट बुक. Page number 12, financial management. It is lifeblood of the business, as I said earlier. No activity is possible without finance. Finance is required for the establishment, development and expansion and modernization of the business. It deals with finance function of business, and financial functions means what? Acquisition, utilization and allocation of capital. It must be done in an ideal and efficient manner. Following functions are there: estimate the financial need, then make a financial plan,
from time period for which we need the finances, the funds which are borrowed maybe. Prepare a budget, allocate the funds, decide the capital structure. As I said, 80 lakhs थे, 50 मेरे पास थे, 30 मैं बाहर से लेके आई. Carry out the procedure for acquiring the finances. See that all the acquired funds are allocated and utilized properly. To form a financial policy, plan the taxes, and then make the arrangement of assets. I hope you are clear with this financial management part. Thank you.